Hello, my dear students. How are you all? I hope all of you are fine. As you are aware that we have already started chapter 4 from our science NCERT book Curiosity of class 7th, chapter number 4, The World of Metals and Non-Metals. Part 1 of this chapter, half of the explanation has been already been completed in part 1 video. Today we are going to study further about metals and non-metals. We have studied that metals are generally hard, shiny and good conductor of electricity, whereas non-metals are often brittle, dull and poor conductor of electricity. We have learned about metals and non-metals, that metals are lead, gold, silver, copper. All of these are shiny, hard and are good conductor of electricity, whereas non-metals, diamond, carbon, sulfur, phosphorus, they are uh, bad conductor or poor conductor of electricity. We have learnt about various properties also. The first property which we learnt in lesson in part 1 was malleability, that materials that can be beaten into thin sheets, this property is called malleability. Then ductility is the another property which we have learnt, in which the materials are drawn into thin wires. Then we have learnt the third property, that is sonority. Sonority is the property of metals that enable them to produce a ringing sound. Then fourth thing which we have learned is the conduction of heat, that is good conductors of electricity or heat. They are the one which transfer heat from one point to another point of a material, whereas poor conductor of heat are those which do not transfer heat from one point to another point of the material. Up till here we have covered in part 1. Now this is part 2 explanation and we'll proceed further with the lesson. Conduction of electricity. Have you ever seen an electrician using a screwdriver? What type of material is used for making its handle? You may have also noticed the electrician wearing rubber gloves and shoes while working. What can be the reason for this? So here, conduction of electricity, we are going to read about conduction of electricity. You must have seen an electrician using a screwdriver. It is a पेचकस जो आप घर में use करते हो. So electrician, why do the electrician use a screwdriver? For doing something which is related to electricity. The work which is related to electricity, electrician uses a screwdriver. And from which material it is made? It is made from the material called plastic. And an electrician also wear rubber gloves and shoes while working. What is the reason behind it? Activity 4.4, let us design and create. Design an electric circuit like the tester circuit in chapter electricity circuits and their components. Repeat the same activity using the material listed below and record your observation in table 4.2. So what you have to do, you have to design a electric circuit like we have made in the chapter electricity circuits and their component. It will be a tester circuit and you have to repeat this activity with the material which is been given provided here in this activity. You may collect a few objects such as a piece of aluminium foil, an iron nail, a lump of sulfur pea-sized, a copper wire, a piece of coal, a piece of dry wood, a stone, an eraser made of rubber, and a piece of nylon rope. So objects which you are going to take are a piece of aluminium foil, iron nail, then a pea-sized sulfur, copper wire, then a piece of coal, piece of wood that is dry, a stone, eraser made of rubber, and you have to take a piece of nylon rope. Predict which of these could make the bulb of the tester glow and which could not. अब यहाँ पर जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, इन ऑब्जेक्ट्स के साथ हमने एक एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी में हमें क्या करना है? इन ऑब्जेक्ट्स को हमें यूज़ करना है और फिर प्रिडिक्शन करनी है कि वेदर द बल्ब विल ग्लो और नॉट. ओके.
Table 4.2, conduction of electricity by different objects or material. Serial number, object and material. Now here some objects are given. Piece of aluminium foil. Observation. Bulb glow, does not glow. You have to write whether the bulb will glow or not glow. Good conductor of electricity or poor conductor of electricity. Okay. Now first is piece of aluminium foil. In this the bulb will glow. Okay. Why? Because it is a good conductor of electricity, because it helps electricity to pass through it. इसलिए electricity जब pass होगी तो bulb glow करेगा. Then we have iron nail. In case of iron nail, the bulb will glow and it is a good conductor of electricity. Then lump of sulfur, pea-sized. Bulb will not glow. In this case, bulb will not glow and it is a poor conductor of electricity. Then if I take a stone as it is given in the objects, उसमें से मैंने एक object लिया stone. Stone के केस में क्या होगा? Bulb will not glow and it is a poor conductor of electricity. So this is very clear that first is aluminium. Aluminium is a metal. Then iron nail. Iron is also a metal. In case of metal, the bulb will glow and they are good conductor of electricity. When we talk about non-metal like sulfur or any other object, in that case the bulb will not glow and they are the poor conductor of electricity. You might have observed that objects made of aluminium, iron and copper make the bulb glow, whereas sulfur, coal, wood, stone, eraser and nylon rope could not make it glow. Do you see any pattern in glowing of bulb when using different materials in activity 4.4? It is observed that all the materials that make bulb glow are metal. तो जितने भी metals हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये बल्ब को ग्लो करेंगे. whereas सल्फर, कोल, वुड, स्टोन, इरेजर, नायलॉन रोप, ये सारे नॉन मेटल है, ये बल्ब को ग्लो नहीं करेंगे. ठीक है. तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सारे मटेरियल जो बल्ब को ग्लो करते हैं वो कौन से हैं? वो मेटल. Materials that allow electricity to flow through them easily are good conductor of electricity. तो ऐसे मटीरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने में इजीली हेल्प करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है एक ऑब्जेक्ट से, इजीली फ्लो करती है दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर. इन कॉन्ट्रास्ट मटीरियल दैट प्रिवेंट the bulb from glowing by not allowing electricity to pass through them are poor conductor of electricity. और जो मटेरियल अलाउ नहीं करते, बल्ब को ग्लो नहीं करते, उनको हम कहते हैं poor conductor of electricity. So now we can understand that the plastic covering on screwdriver and rubber gloves protect the electrician from electric shock because these material are poor conductor of electricity. तो इसीलिए जो स्क्रू ड्राइवर पे जो प्लास्टिक लगा होता है, प्लास्टिक कवरिंग होती है, और रबर ग्लव्स जो इलेक्ट्रिशियन ने पहने होते हैं, वो इलेक्ट्रिक शॉक से उसको बचाते हैं. क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक जो है ये ऐसा मटेरियल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास होने नहीं देता. तो इसीलिए इलेक्ट्रिक शॉक से ये प्लास्टिक जो है वो बचाता है. We learned that metals are generally hard, lustrous, malleable, ductile and good conductor of heat and electricity. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि मेटल्स कैसे होते हैं. हार्ड होते हैं, लस्टरस मीन शाइनी होते हैं, मेलेबल मतलब हम उनको थिन शीट्स में वो कर सकते हैं, डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में हम उसको प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम थिन वायर्स में उनको करते हैं. गुड कंडक्टर्स भी होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. नाउ लेट अस लर्न हाउ मेटल्स बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर. नाउ हम क्या पढ़ेंगे कि मेटल्स जो हैं वो एयर और वाटर की जब प्रेजेंस हो तो उस टाइम पे मेटल्स किस तरीके से बिहेव करते हैं. इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल्स. आयरन. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आयरन. ठीक है. You would have often noticed that iron objects develop brown deposit when left in open for a few days. In which conditions would an iron object develop brown deposit? अब यहाँ पर आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है हमारे घर में जो आयरन के डोर होते हैं, लोहे के जो दरवाजे होते हैं या लोहे की कोई अलमारी होती है, जब हम उसे काफ़ी टाइम तक ऐसे खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, एयर भी है और कभी उस पर वाटर भी पड़ता रहता है दरवाज़ों पे, तो क्या होता है हमारे को एक ब्राउन कलर का डिपॉजिट नज़र आने लगता है. ठीक है.
तो अब यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि अगर हम एयर और वाटर के अंदर किसी मेटल को छोड़ दें, ठीक है, तो उस मेटल को क्या होगा और कैसा जो है वो किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। Now three cases are given here. What it comes into when it comes into contact with dry air only, when it comes in contact with water only, when it comes in contact with both air and water. तो हमारे पास तीन कंडीशन उन्होंने दे दी कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन डिपॉजिट कब आएगा। ये हमें एक्सपेरिमेंट से फाइंड करना है, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को ड्राई एयर में रखेंगे तो क्या होगा, सिर्फ वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, और अगर दोनों में एयर और वाटर में रखेंगे तब क्या होगा। एक्टिविटी 4.5 लेट अस एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग आयरन नेल्स। इसका मतलब हमें इसमें आयरन नेल यूज़ करने हैं, तो आपको बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना है, ये चुप भी सकते हैं। Take a few shining iron nail. If you are using old iron nail, make sure to remove brown deposit from their surface by scrubbing them with the help of a small piece of sandpaper. ठीक है, आपने क्या करना है, कुछ शाइनी आयरन नेल्स लेने, कील लेने हैं। ठीक है, अगर आप पुराने नेल यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी ब्राउन डिपॉजिट को हटाना है। कैसे, स्क्रब करके, किसी सैंड पेपर के साथ स्क्रब करके हटाकर उसको आपने हटाना है। Take 3 clean dry glass bottles or test tubes with tight fitting caps or stoppers. Label them ABC. आपने ऐसी तीन ग्लास बॉटल्स लेनी है। टेस्ट ट्यूब भी आप ले सकते हो जिसकी टाइट फिटिंग हो, पर वो बिल्कुल क्लीन और ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। ठीक है, और इनको आपने लेबल करना है ABC। टेक 3 आयरन नेल एंड टाई ईच आयरन नेल विद अ थ्रेड। तीन आयरन नेल ले लो और हर नेल को आपने जो है वो थ्रेड के साथ इसको बांधना है, जैसे इस फिगर में दिया है। यहाँ फिगर में दिया हुआ है ना, कैन यू सी, ये फिगर दी है ना, देखो यहाँ पे इसको थ्रेड से जो है वो बांधा हुआ है, टाई करा हुआ। ठीक है, ए आपने देख लिया, ए में क्या है, ए में सिर्फ एयर थी। Place one iron nail and some silica gel in glass bottle A and tighten the cap and stopper. Silica gel makes the air dry. ठीक है, आपने क्या करना है, ए वाला जो है उसके अंदर एक आयरन नेल डालना है। आयरन नेल डालने के बाद आपने सिलिका, उसके अंदर सिलिका जेल डालना है उस बॉटल के अंदर, और उसको टाइट करके उसकी कैप को आपने उसे बंद करके रखना है। सिलिका जेल जो है वो एयर को ड्राई कर देगी। It is a substance that is used in small pouches in some medicine water bottles, shoe boxes, etc. to keep them dry. आप जब कभी नई बॉटल लेकर आते हो, ठीक है, तो नई बॉटल में एक छोटा सा पैकेट होता है वाइट कलर का, और उस पर लिखा होता है सिलिका जेल। ठीक है, वो सिलिका जेल जो है ना वो एयर को ड्राई करता है, वाटर बॉटल्स को ड्राई रखने के काम आता है। ठीक है, जनरली जब वैसे उसको ड्राई रखने के काम आता है, बट जनरली व्हेन वी आर यूजिंग दोज वाटर बॉटल्स, तो हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने करना है क्या है, ए वाला हमने लिया, टेस्ट ट्यूब ली या फिर जो भी आप ग्लास बॉटल ली, उसके अंदर आपने एक नेल डाल दिया थ्रेड से टाइट करके, और उसके बाद आपने उसमें सिलिका जेल डाल दिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसके अंदर सिर्फ हवा, ए वाले में सिर्फ ड्राई एयर। बी में क्या करना है, प्लेस वन आयरन नेल इन ग्लास बॉटल बी, pour freshly boiled and cooled water to remove dissolved gases into it until the iron nail is completely dipped in it. आपने क्या करना है, इसमें एक बॉइल्ड और कूल्ड वाटर, ठीक है, बॉइल और कूल वाटर दोनों मिक्स करके आपने इसमें डाल देना। ठीक है, उसके बाद इसमें आयरन नेल डाल देना है ताकि पानी के अंदर पूरा आयरन नेल जो है वो डिप हो जाए। नाउ पोर सम ऑयल टू फॉर्म अ लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब आपने यहाँ इसके ऊपर ऑयल डाल देना। ठीक है, ये ऑयल डला हुआ है ना, ये देखो ऑयल भी है और ये वाटर भी है। द लेयर ऑफ ऑयल ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर प्रिवेंट्स द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। कैप द बॉटल टाइटली। अब आपने बॉटल की कैप को टाइट बंद कर देना है। आपने जब ऑयल डाला तो ऑयल से क्या हुआ कि जो एयर है वो वाटर तक नहीं पहुंच पाएगी, एक लेयर ही बना लेगी ऊपर एयर, ये जो ऑयल है ये एक ऐसी लेयर बना लेगा कि एयर जो है ना वो वाटर तक नहीं पहुंच पाएगी। प्लेस वन आयरन नेल इन द ग्लास बॉटल सी। अब सी में भी आपको एक ग्लास बॉटल में आयरन नेल डालना है। एंड पोर सम वाटर सो दैट द आयरन नेल इज पार्शियली डिप्ड। आयरन नेल को पार्शियली डिप करके आपने क्या करना है, पार्शियली मतलब आधा डिप करना है वाटर में, ठीक है, और आधा वो ऊपर हवा में रहेगा। कीप दिस
ग्लास बॉटल अनस्टॉपर्ड, ठीक है। दिस अनस्टॉपर्ड मतलब इसको आपने लूज छोड़ देना है। दिस अलाउज द आयरन नेल टू कम इन कॉन्टैक्ट विद बोथ वाटर एंड एयर, ठीक है, वाटर और एयर दोनों के कॉन्टैक्ट में रखना है। प्लेस ऑल द ग्लास बॉटल अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस फॉर 8 to 10 डेज। 8 to 10 डेज तक आपने जो है इसमें चेंजेस देखने हैं, उनको ऐसे ही रखना है, अनडिस्टर्ब, छूना नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3, ठीक है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन। अब देखो ग्लास बॉटल ए में आपको पता है क्या था, ए में सिर्फ एयर थी, तो हमने एयर पे यस करा हुआ है कंडीशन, वाटर नहीं था तो नो लिखा हुआ। ऑब्जर्वेशन कि जब एक आयरन नेल सिर्फ एयर में है, ठीक है, तो कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं होगा, रस्ट नहीं होगा, ठीक है। ब्राउन डिपॉजिट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, ठीक है। ग्लास बॉटल बी में क्या था, ग्लास बॉटल बी में प्रेजेंस ऑफ वाटर था एंड ऑयल था, बट एयर जो है वो नहीं था, उसमें एयर नहीं थी, सिर्फ वाटर थी, ठीक है। तो वाटर में आ जाएगा यस और एयर में आ जाएगा नो, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन आएगी नो ब्राउन डिपॉजिट। सी में, सी के केस में हमें पता है कि सी के केस में क्या था, वाटर भी था और एयर भी थी, तो दोनों में क्या आएगा, प्रेजेंस ऑफ वाटर यस, प्रेजेंस ऑफ एयर यस, ऑब्जर्वेशन प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, इसमें प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट सी वाले में आएगा, ठीक है। अब सी वाले में क्यों आया, क्योंकि इसमें वाटर और एयर दोनों था, जहाँ वाटर और एयर दोनों होंगे वहाँ पर ब्राउन डिपॉजिट आएगा, मीन्स रस्टिंग वहीं होगी जहाँ पर वाटर भी है और एयर भी है। What can you conclude from this experiment? It is observed in glass bottles A and B that iron nails do not show any brown deposit. तो हमने ये पढ़ा कि A और B में कोई जो आयरन नेल थे उसमें ब्राउन डिपॉजिट नहीं था, रस्टिंग नहीं थी। What does this observation indicate? This indicates that brown deposit or discoloration on the iron nail do not develop when the iron nail is kept in dry air alone, bottle A, or water alone, bottle B. तो इससे ये पता लगता है कि ब्राउन डिपॉजिट जो है ना, या कलर का चेंज, ठीक है, जो आयरन के नेल्स का कलर का चेंज वो जो है वो तब नहीं होता जब आयरन नेल को हमने सिर्फ ग्लास ए में ड्राई एयर में रखा था या सिर्फ वाटर में रखा था ऑयल के साथ, तो तब नहीं हुआ। हाउएवर इन ग्लास बॉटल सी द आयरन नेल्स शो द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट, तो सी में हमें ब्राउन डिपॉजिट नजर आया, क्यों, दिस इंडिकेट दैट प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर, एयर और वाटर दोनों चाहिए, इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। अगर एयर वाटर दोनों नहीं होंगे तो रस्टिंग नहीं होगी। दस मॉइस्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन डिपॉजिट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। तो मॉइस्चर जो है, गीली, हल्की हल्की गीली जो होती है ना, मॉइस्चर होती है जिसमें थोड़ी सी ह्यूमिड होती है, ऐसी एयर ही रिस्पॉन्सिबल है ब्राउन डिपॉजिट के किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट, इसको हम रस्ट कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, इसे हम कहते हैं रस्टिंग। सी द पिक्चर, ये देखो, ये आयरन नेल्स हैं, आयरन नेल के ऊपर किस तरह से ब्राउन कवरिंग जो है वो आपको नजर आ रही है, ब्राउन डिपॉजिट या ब्राउन कवरिंग। दिस फॉर्मेशन इज ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग एंड दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट, इसको हम रस्ट बोलते हैं। Many other metals also exhibit discoloration when kept open in the atmosphere. कई दूसरे metals जो हैं उनका भी कलर चेंज हो जाता है जब वो एटमॉस्फेयर में खुले छोड़ दिए जाते हैं। Have you noticed the formation of green coating on the surface of copper objects or black coating on the surface of silver objects? कई सिल्वर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो ब्लैक सी कोटिंग नज़र आती है, ठीक है। जब हम सिल्वर ऑब्जेक्ट्स में हम खाना बनाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की कढ़ाई है या कोई स्टील की कढ़ाई है, उसमें हम खाना बना रहे हैं, ठीक है, बार बार हम उसे यूज़ कर रहे हैं, तो एक सिल्वर जो ऑब्जेक्ट पे एक ब्लैक सी कोटिंग हमें नज़र आती है। Gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water or other substances called corrosion. बार बार जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं मेटल सरफेस का, बार बार मेटल की चीज़ का जब हम ग्रेजुअली हम उसको यूज़ कर रहे हैं और तो
तो ग्रेजुअल डिटोरेशन मतलब हो गया कि जब हम ग्रेजुअली किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मेटल का, ठीक है, किसी भी एयर की वजह से, वाटर की वजह से, किसी और सब्सटेंस की वजह से, उसे हम बोलते हैं कोरोशन। Okay. Do you know that rusting of iron is a serious problem in our country? Every year, an enormous amount of money is spent to replace or repair iron structures damaged due to rusting. तो हर साल हमारी प्रॉब्लम में रस्टिंग, हमारी जो कंट्री है वहाँ पे रस्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हर साल काफ़ी अमाउंट जो है वो हम रिप्लेस या फिर किसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, आयरन की चीज़ को या फिर रिपेयर करने के लिए हम लगाते हैं। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय सेवरल मेथड एज पेंटिंग। तो अगर आप किसी भी चीज़ को, जो आयरन का दरवाज़ा है सपोज, उस पर रस्ट लगी है, ठीक है, अगर आप उस पर पेंट कर देंगे तो हम रस्टिंग से बच सकते हैं। ऑयलिंग कर देंगे, ऑयल लगा देंगे तो हम रस्टिंग से बच सकते हैं। याद है आपको, अभी हमने ग्लास जो बी था उसमें ऑयल डाल दिया था तो ऑयल की कोटिंग ऊपर आ गई थी, तो इस वजह से भी रस्टिंग नहीं हो पाई थी, ब्राउन कोट नहीं आ पाया था। ग्रीसिंग, किसी चीज़ को हम ग्रीस कर दें तब हम जो है वो जो है उस रस्टिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। देन अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन। अगर हम जिंक मेटल को आयरन पे लगा दें तो इस मेथड को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए जब हम एक प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं किसकी, जिंक मेटल की, ठीक है, जिंक मेटल की जब प्रोटेक्टिव लेयर लगाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। Fascinating facts, the wonder of ancient Indian metallurgy. The iron pillar of Delhi was made in the time of Chandragupta II, more than 1600 years ago. It is about 8 meters high and weighs more than 6,000 kilograms. What is interesting about this iron pillar is that despite of these years of facing winds, rainfall and intense weather, it has barely एनी रस्ट। तो आयरन पिलर जो है दिल्ली में जो है, ये चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे बना था, ठीक है, आज से 1600 साल पहले। ये 8 मीटर ऊंचा है और इसका वेट 6000 किलोग्राम, मोर देन दैट, ठीक है। और इतनी ज़्यादा विंड, रेनफॉल, मतलब एयर, हवा, रेनफॉल, बारिश इसके ऊपर गिरी, ऐसा इंटेंस वेदर था, पर तब भी इसके ऊपर रस्ट नहीं लगी। इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ बीन मेड अ वे दैट इट रेजिस्ट रस्टिंग। एक तरीका उन्होंने बनाया जिससे कि ये इस पर रस्टिंग जो है वो ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये हमें बताता है कि उस टाइम पर भी ऐसी स्किल्स थी जो मेटल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुकी थी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल। अब हमने आयरन के बारे में तो पढ़ लिया कि अगर आयरन मेटल पे एयर और वाटर इकट्ठे आ जाए तो उस पर क्या हो जाता है, एक ब्राउन कोटिंग आती है जिसे हम रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग को हम कई मेथड से जो है प्रिवेंट कर सकते हैं, लाइक ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की जिंक की कोटिंग लगाकर हम उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आयरन के बाद और कौन से मेटल्स हैं जिन, और हमें मेटल्स के बारे में और कौन से मेटल के बारे में हम पढ़ सकते हैं जिन पे और उन पे क्या इफेक्ट होता है एयर और वाटर का। Activity 4.6, let us investigate. Demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. Caution, it is advisable for students to wear protective eyeglasses and keep safe distance. ठीक है, तो let adults or any teacher demonstrate this activity because if students are doing it, you have to be at a safe distance and you have to wear the eyeglasses also. Take a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long. Clean it by rubbing with a piece of sandpaper. आपने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जो, और आपने उसको क्या करना है, उसको एक सैंड पेपर से रब करके क्लीन करना है। होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। आपको एक चिमटा लेकर उससे आपको इसको पकड़ना है। इग्नीट द अदर एंड यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और अ कैंडल, ठीक है। कैंडल से या स्पिरिट लैम्प से आपने क्या करना है, उसका जो दूसरा एंड है ना, मैग्नीशियम रिबन का दूसरा जो एंड है वो आपको जलाना है। लेट द मैग्नीशियम रिबन बर्न। आपको इसको अच्छे से बर्न करना है, जलाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व?
You must have observed the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. ठीक है, जैसे ये मैग्नीशियम रिबन बर्न होगा एक वाइट फ्लेम नजर आएगा, लाइट, ये देखो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पिक्चर में वाइट सा फ्लेम नजर आ रहा है, ठीक है, एंड इट चेंजेस इनटू वाइट पाउडर, और ये वाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। कलेक्ट इट ऑन अ वॉच ग्लास, इसको आपको एक कोई भी गिलास, जो ये ग्लास पड़ा हुआ है ना शीशे का नीचे, इसमें आपको कलेक्ट करना है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जो पाउडर जो हमें वाइट कलर का मिलेगा ना इसको जलाने से, वो उसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम एक दूसरा मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक पाउडर फॉर्म देगा हमें वाइट कलर का। तो ये जो रिएक्शन हुआ है यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से, उसमें हमें क्या मिला है, वो कैसे हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एयर में जब हमने क्या किया, बर्न कर दिया, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हमने बर्न कर दिया। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वार्म वाटर टू दिस पाउडर, स्टिर वेल एंड चेक इट्स नेचर। आपने इसमें थोड़ा जो है हल्का सा जो ये पाउडर मिला है इसमें वार्म वाटर डालना है और फिर आपने इसका नेचर चेक करना है, ठीक है। Recall the chapter exploring substances acidic, basic and neutral. Find out whether the solution of magnesium oxide is acidic or basic or neutral in nature. You can use acid base indicator. अब आपने क्या करना है, आपने acid base indicator यूज करके बताना है कि ये acidic है, basic है या neutral। What effect does this solution have on blue or red litmus paper? आप कोई भी इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर हमने जो पढ़े थे, लिटमस पेपर, टर्मरिक, ठीक है, और चाइना रोज, इनमें से आपने कोई भी आपने इंडिकेटर यूज करके फाइंड करना है। और अगर आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर ले रहे हो तो आपको वो भी चेक करना है, ठीक है। यू वुड ऑब्जर्व दैट इट चेंजेस द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, हेंस इट इज बेसिक इन नेचर। तो ये हमें पता लग गया कि ये क्या है, ये बेसिक है नेचर में। कैसे? क्योंकि रेड लिटमस ब्लू हो रहा है, रेड लिटमस से ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। We will discuss this burning. Generally oxides of metal are basic in nature. तो जो भी ऑक्साइड फॉर्म होते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Mg मैग्नीशियम, और ये क्या फॉर्म हुआ, ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जनरली जिनके साथ ओ लगा होता है ना, ऑक्साइड होते हैं जो, वो मेटल्स होते हैं नेचर में, ठीक है, बेसिक होते हैं। और ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम तो मेटल ही है, तो जनरली ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, हमारे जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। We will discuss this burning of magnesium ribbon further in chapter changes around us, physical and chemical, ठीक है। Do you know that sodium is a metal? अब हमने मैग्नीशियम का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि मैग्नीशियम का जो हमारे को पाउडर मिला वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था और वो बेसिक था नेचर, ठीक है। Do you know that sodium is a metal which is stored in kerosene because it reacts vigorously with oxygen and water? सोडियम एक मेटल है, अगर आप इसको जो है हम केरोसिन के अंदर, मिट्टी का जो तेल होता है उसमें, मिट्टी के तेल में ही स्टोर करके रखते हैं। क्यों? अगर ये ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये बहुत ज़बरदस्त रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन दिस रिएक्शन, इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। स्टोरिंग सोडियम इन केरोसिन प्रिवेंट्स इट्स एक्सपोजर टू मॉइस्चर एंड एयर। तो केरोसिन में जब हम इसको डाल के रखते हैं सोडियम को, इससे जो एक्सपोजर है मॉइस्चर और एयर के साथ, सोडियम अगर मॉइस्चर और एयर के साथ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा विग्रेसली, बहुत ज़्यादा बड़ा जो है रिएक्शन हो जाता है। कैन यू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड? क्या आप बता सकते हो कि सोडियम के साथ जो है वो अगर इसका नेचर हो तो क्या बनेगा? सोडियम के साथ अगर ऑक्साइड जो है हम मिलाते हैं, ऑक्सीजन मिलाते हैं, तो सोडियम, when sodium reacts with oxygen it forms sodium oxide, and when it reacts with water it forms sodium hydroxide, okay. So let us now discuss some substance that do not behave like metals. अब हमें कुछ substance ऐसे हम उनके बारे में बात करेंगे जो metals की तरह behave नहीं करते। Substances that behave differently from metal in air and water. ऐसे कौन से substance हैं जो metals से differently behave करते हैं? Let us experiment. Demonstration activity. The teacher may demonstrate this activity. अब ये activity भी teacher ही demonstrate करेगी. This activity must be performed in a few
हुड और वेल वेंटिलेटेड एरिया, तो ऐसे एरिया में जहाँ पर जो वेल वेंटिलेटेड हो, जहाँ पर पूरी प्रॉपर एयर आ रही हो। बर्निंग सल्फर प्रोड्यूसेस गैसेज विच में बी हार्मफुल इफ इनहेल्ड। ठीक है, तो अगर ये आप इनहेल करोगे तो हार्मफुल हो सकती है, इसलिए बर्निंग सल्फर को हम ऐसी जगह बर्न करें जो वेल वेंटिलेटेड एरिया हो, खुला एरिया हो। टेक अ स्मॉल स्पून ऑफ पाउडर्ड सल्फर इन अ deflagrating spoon. It is a long handled metal spoon used in experiment to safely heat and burn substances. तो आपने थोड़ा सा पाउडर्ड सल्फर लेना है, किसमें, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून। वो कौन सा स्पून होता है, एक लॉन्ग हैंडल वाला, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा स्पून, विच इज़ जनरली यूज फॉर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, ताकि हम किसी भी सब्सटेंस को हीट और बर्न जो है आसानी से कर सके, हमारे हाथ तक हीट ना पहुँचे। If a deflagrating spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle, wrap a metallic wire around it and give it a shape as shown in the figure 4.7b। अगर वो कह रहे हैं आपके पास ये स्पून नहीं अवेलेबल है, तो आप किसी भी बॉटल का मेटालिक कवर जो है कैप ले लो बॉटल की, और उसको एक मेटालिक वायर के साथ अटैच कर लो, जैसे कि ये फिगर 4.7 में दिया हुआ है, 4.7b में। हीट इट ऑन अ फ्लेम and soon as the sulfur starts burning, introduce the deflagrating spoon into a gas jar and or glass tumbler। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको हीट करना है सल्फर को, और जैसे ही वो हीट होना, बर्न होना शुरू हो, आपने इमीडिएट स्पून को जो है एक जो है ग्लास टम्बलर में डाल देना है। कवर द गैस जार और ग्लास टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो जो गैस इसमें जो हमने बर्न हो रहा था, जब ये उस समय जो गैस रिलीज हो रही थी, आपने फटाफट से उसे ग्लास टम्बलर में डालना है और उसे कवर कर देना है, ताकि वो गैस जो है वो एस्केप जो है वो ना हो। रिमूव द लिड आफ्टर 3 to 4 minutes एंड टेक आउट द deflagrating स्पून। थोड़ी देर बाद आपने 3 से 4 मिनट बाद आपने स्पून को जो है वहाँ से निकाल लेना है। एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू गैस जार, क्विकली प्लेस द लिड बैक एंड शेक इट सो दैट द गैस डिजॉल्व। अब आपने इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी किसकी डालनी है, पानी की डालनी है, और इसको जल्दी से शेक करना है, ताकि जो अंदर की जो गैस है वो डिजॉल्व हो जाए। Again, recall the chapter exploring substances acidic, basic or neutral and neutral. Using an acid base indicator, check whether the solution obtained after the addition of water to the gas jar is acidic or basic or neutral। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे जो सल्फर आपने बर्न किया है ना, ठीक है, उसको आपने चेक करना है किसी भी इंडिकेटर से, एसिड बेस इंडिकेटर से, जो हमने 3 इंडिकेटर पढ़े थे, कि वेदर इट इज़ जो गैस निकली है इसमें, जो वो क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। व्हाट डू यू वुड ऑब्जर्व दैट इट इज़ एसिडिक इन नेचर। अभी एसिडिक क्यों है? ऑन बर्निंग सल्फर इन एयर, ऑक्सीजन sulfur dioxide gas is formed. On dissolving sulfur dioxide gas in water, sulfurous acid is formed. Does sulfur behave in water the same way the other metals do? ठीक है, तो जब आपने सल्फर को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो कौन सी गैस आई, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस आई, तो आपने क्या करना है, इसको आपने जो है चेक करना है। अब ये क्या है, ये एसिडिक है नेचर में, तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है, आप इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। टेक सम सल्फर पाउडर इन अ ग्लास टम्बलर। एक ग्लास टम्बलर में आपने सल्फर पाउडर लेना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू इट। इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज नो रिएक्शन व्हेन सल्फर इज प्लेस्ड इन वाटर। तो कोई रिएक्शन नहीं होगा जब सल्फर वाटर में होगा। Substances like sulfur and phosphorus behave differently with air and water than metals। तो सल्फर और फॉस्फेरस जो है ना, वो ऐसे मेटल्स हैं जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं जब एयर और वाटर में मिक्स किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर एज इट कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर हम उसे एयर में एक्सपोज करेंगे तो वो फायर कैच कर सकता है। These substances are usually soft and dull in appearance. They are neither malleable nor ductile, and they are not sonorous. They are also poor conductor of heat and electricity. These are called non-metal. ठीक है, their oxides are acidic in nature। अब हमने किसकी बात करी, यहाँ पे सल्फर की बात करी। सल्फर आपको पता है स्टार्टिंग से कि सल्फर जो है वो क्या है, ये एक
नॉन मेटल है। तो सल्फर और फॉस्फोरस जो है वो नॉन मेटल है, ठीक है, जो एक अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मेटल से अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये मेलेबल नहीं है, मतलब हम इन्हें थिन शीट्स में नहीं कर सकते डिवाइड, फिर हम डक्टाइल नहीं है, इनको थिन वायर्स में नहीं हम कर सकते, फिर सोनरस नहीं है, इनकी रिंगिंग साउंड नहीं है, और ये डल भी हैं, अपीयरेंस में सॉफ्ट भी हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी अलग होती है, वो हार्ड होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, रिंगिंग साउंड आती है, इनकी नहीं आती। तो दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड इनको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो इनके जो भी ऑक्साइड फाउंड होंगे या फॉर्म होंगे वो एसिडिक होंगे नेचर, ठीक है। Some other non-metals are oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, etc. These must be not be confused with materials such as plastic, glass, wood, rubber, and paper. These materials are not classified as metals or non-metals because they are not elements. ठीक है, तो कुछ और नॉन मेटल बताएं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एक्सेट्रा, ये नॉन मेटल्स हैं। और हमारे पास कुछ मटेरियल हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, रबर, पेपर। तो मटेरियल्स को मेटल और नॉन मेटल में नहीं ला सकते क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सब कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट्स की ही सब कैटेगरी है, मतलब एलिमेंट्स के अंदर जो है वो मेटल और नॉन मेटल आते हैं। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस है जो सिंपलर सब्सटेंस में जो है और तोड़ा नहीं जा सकता, ऑलरेडी वो इतना ही जो है वो ब्रोक हो रखा होता है। प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर नोन। these एलिमेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इन आज की डेट में जो है टोटल एलिमेंट्स है 118, और इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। सम आर नेचुरली अकरिंग वाइल अदर आर आर्टिफिशियली मेड इन लेबोरेटरी। कई तो नेचुरल हैं, ठीक है, नेचुरली मिले हैं हमें, और कई जो है वो बनाए गए हैं लेबोरेटरी में, एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर ग्रेड। आर नॉन मेटल एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? अब हमने मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिया, क्या नॉन मेटल भी एसेंशियल है? यस, ये भी एसेंशियल है। क्यों है ज़रूरी? यू ऑफन ऑब्जर्व मैनी मेटल्स इन योर डे टू डे लाइफ बिकॉज ऑफ देयर डिस्टिंक्ट properties such as lustrous nature, heat and electrical conductivity and high strength। ठीक है, मेटल्स हमारे डे टू डे लाइफ में हमें उनकी प्रॉपर्टी की वजह से पता है, जैसे कि वो शाइनी होते हैं, ज्वेलरी बन जाती है, ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी मतलब गुड कंडक्टर्स हैं वो, हाई स्ट्रेंथ है इनके अंदर। हाउएवर दिस शुड गिव एन इम्प्रेशन इन योर माइंड दैट नॉन मेटल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमें ये लगता है कि ये सारे मेटल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, इनसे ही सब चीज़ें बनती हैं, सब चीज़ें इन्हीं से हो रही हैं, तो नॉन मेटल क्यों ज़रूरी है? नॉन मेटल्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल, एंड विदाउट इट वी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। ठीक है, तो हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन में, ठीक है, जो कि एक नॉन मेटल है, और इसके बिना तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के बहुत सारे यूज़ हैं, तो ब्रीदिंग के लिए ये है इम्पॉर्टेंट, फिर कंबस्टन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बर्निंग फ्यूल्स के लिए ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। देन कई एक्टिविटीज़ होती है जैसे रॉकेट में फ्यूल वगैरह भी ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल ऑल्सो। then it is used in some sewage treatment plants to break down some the organic waste, and it is used to improve the water quality also. So it is very important, oxygen is very important non metal. Carbon is essential in everyday life because it is the building block of all life form। ये बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है, क्यों? इट इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट विच आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो हमारे लिए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कार्बन से मिलता है, जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड अदर केमिकल्स। नाइट्रोजन जो है वो मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र के बनाने में, फर्टिलाइजर्स के और केमिकल्स के बनाने में काम आता है। इट इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए भी, ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन इज़ अ नॉन मेटल कॉमनली यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन। क्लोरीन आपको पता है वाटर में डलता है वाटर क्लीन करने के लिए,
ठीक है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन अ नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडीन के कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जो हमारी जो चोट है उस पर एंटीसेप्टिक के तौर पे लगाए जाते हैं। साइंस एंड सोसाइटी। Do you know that many metals and their alloys, mixture of two or more metals or a metal and a non-metal, are important for daily use as utensils and tools. So metals और उनके जो alloys होते हैं, alloys की क्या definition है यहाँ पे, जो दो metal से मिलकर बनते हैं या फिर एक metal और non-metal जो मिलकर बनते हैं उसे हम alloys कहते हैं। ठीक है, ये डेली यूज़ में कैसे काम आते हैं, यूटेंसिल बनाने के, टूल्स बनाने के। दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड एसेंशियल इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, हर तरह की इंडस्ट्री में जो है मेटल्स इम्पॉर्टेंट है। सम स्पेशल मेटल्स आर यूज इन एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में स्पेशल मेटल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे जिरकोनियम, aerospace, titanium, etc. In India, many metals, especially iron and aluminium, are recycled to minimize waste and contribute to sustainability. तो अटोमिक जो है हमारी एनर्जी, उसमें क्या क्या कौन से मेटल यूज़ होते हैं, जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। और हमारी इंडिया में कई मेटल्स हैं जैसे आयरन, एलुमिनियम है, ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये रिसाइकल के लिए, ताकि वेस्ट को रिसाइकल किया जाए और हमारी सस्टेनेबिलिटी को में कंट्रीब्यूशन किया जाए। So with this, the chapter has come to an end, and as well as my video. I hope you have understood this part 2, the explanation of this chapter. Now I'll come up with the next video with the summary and the back exercise. So see you soon. Goodbye.